Namaskar. Welcome to the Health Connect program by Kalinga Hospital Limited. My name is Nilanjana Mukherjee. I am the Managing Director at Kalinga Hospital Limited. The intention to start this podcast was to have this awareness towards the mankind, service of the mankind, because Kalinga Hospital has always been servicing the people of Orissa, people of the state, our neighboring state. It being the oldest corporate hospital, which was started 27 years back and has been continuously serving to the mankind. This podcast's intention is to reach out to people with very simple and common questions which the common people would like to ask the doctors. So today I have a very good doctor, a consultant who's working at Kalinga Hospital, Dr. Gargi Singh Thakur. She will be talking about lifestyle diseases, and I am going to question her certain very common issues and how we can prevent the lifestyle disease. So before we continue, I would like Dr. Gargi Singh Thakur to introduce herself and to tell our viewers that which are the specialties she's dealing with and where has she passed out from and what has she been doing. So over to Madam. Namaskar, myself Dr. Gargi Singh Thakur. I have done my MBBS and MD in internal medicine from Vaidehi Institute of Medical Sciences, Bangalore. Presently, I am working as consultant in internal medicine at Kalinga Hospital Limited. I deal with diseases of diabetes, hypertension, infectious diseases, rheumatological diseases. So, medicine is a very vast topic, and me and Madam will be discussing about the lifestyle diseases that's rampant now in this era, and it has become an epidemic disease. So start with Dr. Thakur. What is the most common lifestyle disease which you come across? Ma'am, lifestyle diseases which is mostly now has become an epidemic is diabetes, and then hypertension, obesity, increased cholesterol levels that is mostly seen in youngster population, and other due to tobacco smoking and all the increased cases of cancers and alcohol related liver diseases. Stress has become a kind of lifestyle disease again, which is leading again to other diseases like diabetes, hypertension. तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में सबसे माने रेड जोन में कौन सा डिजीज आ गया है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है? अभी तो मैम रेड जोन में डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो एक एपिडेमिक डिजीज़ हो गया है. आफ्टर वी हैव इवन आई थिंक बीटन चाइना ऑल्सो. तो डायबिटीज़ हैज़ बिकम एन एपिडेमिक डिजीज़, एंड डायबिटीज इज़ मोस्टली एन अंडर डायग्नोज डिजीज़. इंडिया में इसका अवेयरनेस बहुत कम है और लोग काफ़ी लेट में अपना इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिसके कारण एक अंडर डायग्नोज डिजीज़ ज़्यादा पाया गया है. एक चीज़ what I come across is that lot of youngsters are getting diabetes at a very early age. Could be lifestyle also, and इसका हम माने what is the, how do we detect this, and if we detect this, doctor, how seriously should we take that? Because I have come across lot of people जो ठीक है डायबिटीज़ है फिर भी कंट्रोल नहीं करते हैं, या फिर ऐसा भी हुआ है कि लिटरेट लोग क्या करते हैं कि वो टेस्ट भी नहीं कराते. 1 साल से वो इंसुलिन लेते हैं पर वो टेस्ट भी नहीं कराते. तो आप हमें इतना बताइए कि फॉर द मासेस कि कितना ज़रूरी है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी अवेयर ऑफ दिस डिजीज़ एंड टू ट्रीट इट. डायबिटीज़ इज़ अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज़ बाय द वे. तो डायबिटीज़ के कारण, डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा विशियस साइकिल का डिजीज़ है. आप अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो उसके बाद आपके वो मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है. तो जैसे आपका कार्डियक ऑर्गन को, अगर कार्डियक ऑर्गन को डैमेज किया तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के केसेस, हार्ट स्ट्रोक, ये सब बढ़ जाएंगे. और उसके बाद अगर आपके किडनी में अफेक्ट किया तो आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है. फिर आजकल पाया जा रहा है कि जो नंबर 1 रीज़न ऑफ ब्लाइंडनेस है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है. तो डायबिटीज़ इतना बढ़ गया है आजकल कि डायबिटीज़ के कारण आपके आँखों की जो रोशनी है वो भी ख़राब हो रही है. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और एक चीज़ है जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल लोगों का जो कंप्लेंट्स है हाथ पैर में झिमझिम होना, हाथ पैर में जलन होना, उसके कारण नर्व डैमेज हो रहा है.
उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी डायबिटीज़ को टेस्ट करना चाहिए हर 6 महीने में। अगर कोई एक डायबिटिक पेशेंट हो तो उसका एवरी 3 मंथ्स में वो अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट कराएं, जिससे पता चलेगा कि हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में है या अनकंट्रोल में है, और उसके हिसाब से अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें। और फिर मेडिसिन को अल्टर करना है, बढ़ाना है डोज, कमाना है डोज, या इंसुलिन में पेशेंट को डालना है, वो सब चीज़ एक डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर हम लोग अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो ऑर्गन जो डैमेज होता है डायबिटीज़ के द्वारा, उससे हमको प्रिवेंशन मिल सकता है। सो डॉक्टर, एक चीज़ हमें बताइए कि हम how soon should we start doing these investigations? As in, do you think a child of 12 years, 13 years, 14 years, when do we start doing it? And my second area is that if you have a very strong family history, अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, आपके फादर मदर के, ब्रदर सिस्टर्स के, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ दैट हमें टेस्ट करना चाहिए और कितनी जल्दी करना चाहिए? एक चीज़ है कि हम एशियन पॉपुलेशंस का जो जीन्स है दे आर मोर प्रोन फॉर गेटिंग डायबिटीज़। तो एक चीज़ है, ये चीज़ है। तो एशियन पॉपुलेशन में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये तरीके के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, ये सब ज़्यादा होता है हम लोग में, पाया गया एशियन पॉपुलेशन में। तो अगर एक इंसान का बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसके लाइफ में एक्टिविटीज़ कम है, उसके फिर उसका सिम्टम्स जो उसका लाइफ में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा, उसका वर्किंग जो टाइम है, वर्किंग टाइप है, उसमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, बॉडी में अक्सर थकावट ज़्यादा रहता है, तो उसको जल्दी से जल्दी, चाहे वो 20 साल का क्यों ना हो, उसको करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एज सुन एज पॉसिबल, उसको करना चाहिए। एक बेसिक फास्टिंग ब्लड शुगर ही कर ले वो, तो वो भी एक रैंडम ब्लड शुगर से भी हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि एक पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो आपने एक चीज़ बताया इनिशियली दैट स्ट्रेस इज समथिंग, सी वी ऑल हैव टू लिव विद। आपका भले ही आप काम करें ना करें, स्ट्रेस तो आपका होगा मैडम। ब्लड प्रेशर ऐसी एक चीज़ है, आप बताएं कि दैट्स ऑल्सो लाइफस्टाइल डिजीज़। नाउ आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ब्लड प्रेशर टेस्ट भी नहीं कराते हैं जब तक उनकी तबीयत ख़राब ना हो या देयर इज़ अ एक्यूट थिंग। एंड इन आवर हॉस्पिटल व्हाट वी फाइंड इज़ that lot of youngsters are coming with stroke nowadays. तो आप क्या, what is your suggestion regarding blood pressure and इसको हम कैसे rectify करें और कैसे चेक कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर आजकल में ऐसा हो गया है कि हमारा जो फूड इंटेक है, मोस्टली हमारे फूड में हाई सॉल्ट इंटेक हो गया। जैसे हम लोग बहुत जंक फूड लेते हैं मैम आजकल, तो उसमें सॉल्ट इंटेक हमारा काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से आजकल के जो पैकेज्ड फूड है उसमें भी प्रिजर्वेटिव के हिसाब से सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो गया है। और यंगस्टर्स में ऐसा है कि हॉस्टल्स में रहते हैं, बाहर अपने घर से दूर काम करते हैं, तो अक्सर हम लोग बाहर का खाना खा लेते हैं, तो इसके कारण सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होने के कारण, प्लस स्लीप डिस्टर्बेंस होने के कारण, नींद में काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है, टाइम जोन का, ऊपर से लेट हो जाता है कभी टाइम में। IT प्रोफेशन में देखा गया है मैम, जैसे उनका US वर्क बेस्ड है, तो उन लोगों का टाइमिंग जो होता है सोने का ही लेट होता है, तो उसके कारण ये जो हाइपरटेंशन के डिजीजेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से डायबिटीज़ लोगों को एक ऐड ऑन उनके साथ डायबिटीज ब्लड प्रेशर मिल जाता है, उसके कारण ही ब्लड प्रेशर बहुत। तो इसलिए आप एक फिक्स कर लीजिए कि आपके ऑफिस में है या कहीं भी हैं, तो ऑफिस में आप वीकली वंस जाके BP चेक करा लें। अगर आपको कभी भी BP लग रहा है 140/90, हमारा ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है उसको 2 पार्ट है, एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेट्स से 140 के ऊपर जा रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेट्स से 90 के ऊपर जा रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, आइए और वहाँ जाके आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए और थॉरो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएं, जिससे पता चलेगा कि आपका रिस्क क्या क्या हो सकता है। ब्लड प्रेशर के कारण हम लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक स्ट्रोक हो सकता है, हमारे ब्रेन के जो खून का जो संचार होता है वो कम जाता है, तो उसके कारण हमको जल्दी से जल्दी ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो पाया गया है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर के मेडिसिन खाते हैं पेशेंट्स, 1-2 महीने में BP ठीक हो जाता है तो अक्सर बंद कर देते हैं मेडिसिन। वो चीज़ नहीं होना चाहिए।
पेशेंट्स को खुद ब खुद अपने आप को ट्रीट नहीं करना है, हम डॉक्टर्स हैं इस चीज़ के लिए। हम डॉक्टर्स बने हुए हैं, तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि मेडिसिन का डोज बढ़ेगा, कमेगा या बंद होगा। वो तो ये सही बात बोली है डॉक्टर, बिकॉज आई हैव सीन इन माय थिंग इज दैट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जल्दी आप रोक देते हो, आप थायराइड की मेडिसिन रोक देते हो, यू आर टेकिंग थायराइड मेडिसिन एंड सडनली यू स्टॉप टेकिंग थायराइड मेडिसिन। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज थायराइड मेडिकेशन? सो देखिए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये तीनों ही अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में भाई बहन जैसे हैं। तो भाई बहन जैसे, तो एक हुआ तो दूसरा मेटाबॉलिक डिजीज़, तीनों ही मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो मेटाबॉलिक डिजीज़ दूसरा भी हो सकता है। तो अब अगर जैसे थायराइड हुआ तो थायराइड का मेडिकेशंस भी हम लोग देखते हैं पेशेंट लोग अक्सर स्टॉप कर देते हैं। तो जैसे स्टॉप कर देंगे तो उनका देखा जाएगा, पहले थायराइड का मेडिसिन खा रहे हैं तो उनका TSH लेवल्स जो हम लोग मोस्टली चेक कराते हैं पेशेंट्स में, वो नॉर्मलाइज हो गया। उसके बाद पेशेंट बोलते हैं थायराइड का हो गया, अच्छा हो गया, अब मैं मेडिसिन स्टॉप कर दे रहा हूँ। खुद ब खुद टेस्ट करते हैं, पास के लैब से खुद ब खुद रोक देते हैं मेडिसिन। डॉक्टर्स लोगों को कुछ कंसल्ट करते ही नहीं हैं वो। तो उसके कारण फिर उनको 1-2 महीने में फिर उनको फैटिगनेस स्टार्ट हो जाता है, उनके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो जाता है, उनके डायबिटीज़ में भी फ्लक्चुएशन होता है, प्लस उनके बॉडी में अक्सर पेन होना, कई हाइपोथायराइड केसेस में ओबेसिटी हो जाता है, वेट गेन होने लगता है, हाइपरथायराइड केसेस में वेट लॉस होने लगता है, उनको कार्डियक डिजीजेस भी होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इवन हाइपो में भी कार्डियक डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमको जैसे ही हमारा थायराइड रिपोर्ट आए, पहला चीज़ हम लोग करना चाहिए, कोई भी पेशेंट को अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, फिर वो डोज उसी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जहाँ पे हमको बोला जाता है जंक फूड मत खाइए। तो मेरा आपसे एक कॉमन मैन का एक क्वेश्चन रहता है कि हम खाए तो कैसे खाएं? तो आप बोलेंगे कि फैट फ्री खाइए, तेल कम खाइए, मसाला कम खाइए, घी कम खाइए। अब दिवाली आती है तो घी तो खाना ही पड़ता है हमको। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट देयर आर सो मेनी जंक फूड जॉइंट्स ऑल ओवर। व्हेन यू गो अराउंड भुवनेश्वर यू विल सी लाइन ऑफ जंक फूड जॉइंट्स। नाउ देयर इज समथिंग विच वी कैन अवॉइड, समथिंग विच वी नीड टू कंट्रोल। सो माई क्वेश्चन टू यू एज अ ले पर्सन इज कि सब बोलते जंक फूड कम करो, सब बोलते सैलड खाओ, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, हाउ डू वी बैलेंस दैट? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू कि हम कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं? पहला चीज़ है कि आप जो भी खा रहे हैं, हमारा एक कैलोरी इंटेक होता है, हम लोग को उस हिसाब से एडिक्वेट कैलोरी इंटेक करना है। फिर अगर हम लोग कैलोरी एक्सेस खा रहे हैं, मतलब अगर बाई चांस हम लोग घूमने गए, कहीं हॉलीडे में हैं या वेकेशन में हैं, तो अगर आप ज़्यादा खा भी रहे हैं तो आप उतना याद रखिए कि आपको वो कैलोरी बर्न भी करना है। एक्सरसाइज करिए, हाइकिंग कर लीजिए, ट्रैकिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, जो भी एक मोड ऑफ एक्टिविटी हम लोगों को करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो आप एक्सरसाइज करने से आपका कैलोरी बर्न होता है, उससे आपका जो एक्सेस आप जो जंक फूड लिए हैं उसमें भी आपको बैलेंस करेगा। और एक चीज़ है, जब आप बाहर भी खाना खाते हैं तो आप देखिए आप एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लें। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो है वो हम लोग थोड़ा मिनिमाइज करके एक हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट लेने से अक्सर देखा गया है कि ये जो आपकी जो रिस्क डिजीजेस, जो आप लाइफस्टाइल डिजीजेस से हम लोग को काफ़ी आराम मिलता है, वो सब चीज़ें से हम लोग दूर रह सकते हैं। और मेन चीज़ होता है एक्टिविटी। आपका एक्टिविटी, अगर आप एक्टिव हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अब अगर आप सब वीकली वंस भी आप अगर खा ले रहे हैं तो ये आपका मैनेज हो जाता है। सो व्हेन यू आर टेलिंग अस दैट वी शुड बैलेंस आवर कैलोरीज, so there are a lot of people who would want to go into having salads, having boiled things, protein shake लेते हैं बहुत जन, हाई प्रोटीन, बहुत हाई प्रोटीन लो कार्ब्स डाइट लेते हैं। तो आपका क्या मानना है, इसको कैसे हम बैलेंस करते हैं? आपको लगता है ये सही है? नहीं मैम, एक्चुअली कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बोलेंगे तो एक बैलेंस डाइट में आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर, चारों का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए जी। तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहेगा, और जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस नहीं होंगे। हमारे मेटाबॉलिक डिजीजेस में नंबर 1 डायबिटीज़ है, एंड देन थायराइड है, और उसके बाद वो दोनों है तो हाइपरटेंशन भी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का मेन है हर चीज़ बैलेंस करके खाएं। प्रोटीन शेक्स इज़ अ नो इफ़ यू आर
हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। Okay. आपका अगर एक्टिविटी है, यू आर गोइंग टू जिम, बर्निंग लॉट्स ऑफ कैलोरीज, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा रनिंग है 1 आवर का, अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग एंड रनिंग कर रहे हैं, तब आप, हाँ, इफ़ यू आर सप्लीमेंटिंग योर ब्रेकफास्ट विद सम लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन शेक्स, देन इट्स फाइन। एंड इफ़ और बहुत लोगों का जिनका पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी हो गया होता है, या उनको आईसीयू एडमिशन्स होते हैं, कोविड के टाइम अक्सर देखा गया है लोगों का जो मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन लेवल, जो एल्ब्यूमिन लेवल था वो काफ़ी कम हो गया था और उनका इम्यूनिटी काफ़ी लो हो गया था, तो हम लोग उनको प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन पाउडर से एडवाइस करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बस। एंड वी डोंट टेल देम टू टेक इट रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस। राइट। तो प्रोटीन शेक्स ये सब मोस्टली हम लोग का जो घर का बना हुआ खाना है, जिसमें हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर हो, वही अच्छा है। और सैलड्स को लेके हुआ तो बहुत लोगों को नॉर्मल सैलड्स जो होता है, जो बहुत ही मतलब कच्चा सब्जी रॉ, उसके कारण उनको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, क्योंकि उसमें फाइटिक एसिड का जो मात्रा होता है वो काफ़ी रहता है। तो इसलिए सैलड्स को लेना भी है तो थोड़ा सा हाफ बॉइल करके लेने से काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस डिजीजेस लाइक न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, जिसमें टेप वर्म इन्फेस्टेशन होता है, देखा गया है कि आजकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का जो बढ़ गया है, टेप वर्म एक तरह का वर्म है जो कैबेजेस में मोस्टली या कोई भी वेजिटेबल्स में रह जाते हैं। अगर हम लोग सब्जियों को अच्छे से वॉश ना करें, तो अगर उसको हम लोग कंज्यूम कर लें, तो वो हमारे ब्रेन में भी एक तरीके का घर बना के बाद में सीजर्स हो सकता है या फिट्स तरीके के आ सकता है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस हो सकता है। तो इसलिए हाफ बॉईल करके खाएं, सब्जियों को अच्छे से धोएं और सॉल्ट, टर्मरिक वाटर से धोएं, तो उससे बेटर रिजल्ट्स आएगा फिर। तो मैडम, आपके साथ जो कन्वर्सेशन में पता चल रहा है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, food habits, these are all certain lifestyle problems. But during my conversation you said stress. हमारा नया जनरेशन जो अभी IT सेक्टर, सेडेंटरी लाइफ, वर्क फ्रॉम होम, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, of course not that doctors don't have high pressure, they have also working under very high pressure, erratic timings. So as a doctor, this is something which we'll have to deal with. So as a doctor, what would your suggestion be to the common masses कि हम एक बहुत सिंपल सोल्यूशन से उनको कैसे हम इसको डील करवा सकते हैं? स्ट्रेस इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक। पहला जी, स्ट्रेस बहुत वास्ट है और सबके स्ट्रेस के फैक्टर्स इज़ पर्सनल। अब हम लोग बोल नहीं सकते उस इंसान को क्यों स्ट्रेस है, या डिप्रेशन है, या एंग्जाइटी है। देयर आर वेरियस वर्ड्स आजकल जो कॉमन पॉपुलेशन यूज़ करते हैं कि मेरे को स्ट्रेस है, मेरे को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। पहला चीज़, एक अपना स्लीप को उन लोग रेगुलेट करें, अच्छे से सोएं, टाइम पे उठें। फिर एक्टिविटी लेवल, अगर एक नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं उन लोग, जैसे डांस हो गया, स्विमिंग हो गया, जिम चले गए, वॉकिंग करे, तो उससे भी काफ़ी स्ट्रेस लेवल कम जाता है। फिर अपने हॉबीज़ के लिए कम से कम टाइम निकालें, एक मी टाइम निकालें अपने लिए, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कमेगा। और वो उसको अपने उसमें हॉबीज़ इंक्लूड करें, एक्सरसाइज इंक्लूड करें, भले उनको कुकिंग क्यों ना अच्छा लगता हो या डांसिंग क्यों ना अच्छा लगता हो, वो चीज़ करें, उससे काफ़ी स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। और एक चीज़ जो बहुत कॉमन होता है वो है कि हम सोते वक्त टीवी देखते हैं या फिर फ़ोन पे रहते हैं। तो स्टडी कहती है कि आप सोते वक्त टीवी, फ़ोन बंद कीजिए and you go back to reading to sleep. So that gives a better sleep. So how do you think the electronic gadgets, the TV, the social media is affecting the population? आपको क्या लगता है? मैम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टीवी, इंस्टाग्राम यूज़, फेसबुक यूज़ आजकल इतना बढ़ गया है कि वी गेट सो मच ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी। तो आप अगर रात में सो भी रहे हैं, आप सोचिए देख रहे हैं कुछ और आपको डायबिटीज़ है, और अगर आपको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल रहा है फेसबुक या इंस्टाग्राम में, तो आप उसको सोचते सोचते सो रहे हैं, तो इन योर स्लीप ऑल्सो यू आर हैविंग लिसनिंग टू दैट, यू आर हैविंग अ स्ट्रेस इफेक्ट। तो आप नेक्स्ट डे जब सुबह भी उठते हो तो आप एक थके हुए स्टेट में उठते हो, एंड यू आर हैविंग अ लो मूड कि क्या मतलब नेक्स्ट डे हाउ इट गोज करके। तो वही चीज़ है। तो इससे अच्छा अपने सोने से 1 घंटा पहले ही आप अपने फ़ोन्स या उसको स्विच ऑफ कर दें या अलग रखें, दूर में रखें, और सोने से पहले बुक्स पढ़ें या नॉर्मल स्लीप आंख बंद करके भी धीरे धीरे स्लीप को अपना कंटिन्यू रखें तो बेटर रहेगा।
और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है विच इज़ देयर विथ लॉट ऑफ मासेस इज दैट यू नो दे गेट वेरी पैनिक विथ द डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़, दे गेट वेरी पैनिक विद द डिटेक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि डायबिटीज़ यू कैन मेजर इन द हाउस. So, you know, there are people who are very panicky कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर आज इस मशीन में दिखा रहा है, कल इस मशीन में दिखा रहा है. तो कौन सा राइट वे इज टू मेजर योर ब्लड प्रेशर? शुड वी डू इट इन द हाउस विद द डिजिटल, or should we do it in the same time, or should we do it in the same place, or how do we go about it? It should be for the common people. कैसे मॉनिटर कर सकते हैं हम अपना ब्लड प्रेशर? मैम ब्लड प्रेशर जो होता है लाइक सी मशीन एंड ऑल इट गिव्स जस्ट एन एवरेज आइडिया, इट इज़ नॉट कंफर्म कि ब्लड प्रेशर. पहला चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स बेसिकली क्या क्या हो सकता है, एक हेड रीलिंग मतलब सर घूम रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, आँख से ठीक से नहीं दिख रहा है, सीवियर हेडेक है, उसके साथ वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस समय आपको अगर लग रहा है आपका बीपी मेजर किए, बीपी मशीन में हाई है, उस समय अगर आप हल्का सा भी 140/90 की उसके एक सिग्नल जैसा भी आता है, कई बार नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन्स में भी उसमें दिखाता है कि हाई हाई करके, तो अगर वो दिखा रहा है तो आप तुरंत अपने पास वाले डॉक्टर के पास जाइए. वो जो मेजर करेंगे जो स्पिग्मोमैनोमीटर में, वही एक राइट ऑथेंटिक वे है. और बाकी जो नॉन हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशंस ले रहे हैं वो घर में ऑफकोर्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उससे उनको एक आइडिया मिलेगा कि उनका बीपी कंट्रोल में है जी. और अगर उनका बीपी कभी हाई भी हो जाता है तो वो फिर अपने डॉक्टर को विजिट करें, और फिर डॉक्टर्स उनको स्पिग्मोमैनोमीटर में देखेंगे और फिर बताएंगे कि ये एक्चुअल में ठीक है या नहीं. बट मोस्टली देखा गया जो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन्स है उसमें +10 -10 का ही एरर होता है बीपी में, ज़्यादा एरर नहीं पाया जाता है अगर पेशेंट का पोजीशन ठीक हो. मोस्टली अगर वो अपने लेफ्ट हैंड में बीपी देखे और उसका जो बीपी मशीन है इट इज़ क्लोजर टूवर्ड्स द हार्ट के पैरेलल में मशीन रखे और लेफ्ट हैंड में बीपी देखे, तो मोस्टली ऑलमोस्ट +10 -10 का ही डिफरेंस आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता. अच्छा, मेरा और एक क्वेश्चन है आपको मैडम कि सिंस यू डील विद इन्फेक्शियस डिजीजेस, आप स्पेशलिस्ट हैं, तो विच आर द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, व्हाट इज़ द सिम्टम कि लगने से लगे कि इन्फेक्शियस है और हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए? इन्फेक्शियस डिजीज़ आर मोस्टली सीजनल है, ठीक है. आपका हर सीज़न में हम लोग देखा गया है कि अलग अलग डिजीज़ आते हैं. जैसे समर से रेनी की सीज़न में मैम मम्प्स का बहुत ज़्यादा ये रहता है, मम्प्स, चिकन पॉक्स, ये सब डिजीज़ ज़्यादा है. तो चिकन पॉक्स, मम्प्स का मेन सिम्टम है आपका सैलिवरी ग्लैंड या आपके चीक जो होते हैं उसमें बकल एरिया में काफ़ी स्वेलिंग हो जाता है, तो वो एक रह गया. फिर आपका चिकन पॉक्स में स्किन लीजन्स आ जाते हैं, वाटर फिल्ड छोटे छोटे पस काइंड ऑफ पस्चुल्स हो जाते हैं या वेसिकुलर लीजन्स बोलते हैं, वो होते हैं. तो वो जब वैसा हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए. फिर अभी जैसे रेनी सीज़न आएगा तो डेंगू का आप देखेंगे, डेंगू बढ़ते जाएंगे. फिर मलेरिया प्रोन एरियाज़ में जो होंगे मलेरिया होंगे. तो इस तरीके से इन्फेक्शंस जो होते हैं इट रीजन टू रीजन एक होते हैं, और एक चीज़ है सीज़न टू सीज़न डिफ़र करता है इन्फेक्शंस डिजीज़ेस. और इन्फेक्शियस डिजीज़ का मेन सिम्टम्स एक होता है फीवर, हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, राइगर्स, मलाइज, बॉडी पेन रहना, बॉडी में रैशेस होना. ये हमारा एक नॉर्मल एक सिम्टम्स है जो पहला हम लोग को दिखाएगा कि आपको इन्फेक्शन डिजीज़ है या नहीं. मेन चीज़ है फीवर, बॉडी एक, रैशेस एंड बहुत थकावट होना, लाइक यू कैन नॉट इवन डू योर नॉर्मल एक्टिविटीज़. तब आप सबसे पहले डॉक्टर को जाइए और जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के पैनल के टेस्ट हैं जितने, वो पहले हम लोग करेंगे और फिर डिटेक्ट होता है कि कौन सा इन्फेक्शन है पेशेंट को. मैडम, डेंगू के टाइम में हमारा तो हॉस्पिटल पूरा भर्ती रहता है डेंगू के पेशेंट्स का, पर डेंगू क्या होता है कि हम कभी कभी लाइटली भी लेते हैं उसको. तो आपके मुताबिक हाउ रिस्की इज डेंगी हैज़ अगेन इज़ अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज़. बहुत ही लाइक यू शुड पीपल, डेंगू होता है तो डेंगू जैसे डिटेक्ट होता है पहला चीज़ है उनको प्लेटलेट काउंट देखना है, बिकॉज प्लेटलेट हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल है. हमारा ब्लड जो है मोस्टली अगर हम लोग देखेंगे क्लेमेन के तरीके से तो 3 तरीके में डिवीजन है, एक रेड ब्लड सेल, एक वाइट ब्लड सेल और एक प्लेटलेट काउंट.
प्लेटलेट काउंट का जो काम है वो हमारे ब्लड में क्लॉट जो क्लॉट करने का ये होता है। अगर आपका प्लेटलेट कम गया मतलब आपका क्लॉटिंग का जो पावर है वो कम हो जाएगा, तो उसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, वो ब्रेन भी क्यों ना हो, ब्रेन से भी हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि पहले आपको फीवर है, फीवर अगर 4-5 दिन हो गया, रैशेस हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है सीवियर, सबसे पहले जाके डॉक्टर को दिखाइए। डेंगू अगर डिटेक्ट होता है, डेंगू डिटेक्ट होने के बाद हम लोगों को लीवर फंक्शन टेस्ट और एक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट ये करना ज़रूरी है, जिससे पता चलेगा प्लेटलेट कैसा है और लीवर का स्टेट कैसा है, क्योंकि प्लेटलेट के डेंगू में लीवर फेलवर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ एक बहुत डेंजर साइंस है, वार्निंग साइंस है डेंगू के। तो और कभी भी ये सब चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर पेशेंट्स लोग वेट करते हैं कि हाँ हमारा प्लेटलेट कमेगा तभी हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन इट्स टू लेट। Yes, we have seen lot of very critical cases. तो मैडम और एक चीज़ मेरा, because you have touched the infection disease, I want to speak to you about senior citizen vaccination. अभी मार्केट में बहुत आता है कि सीनियर सिटीजन्स की ये वैक्सीन अवेलेबल है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे आप मम्स और चिकन पॉक्स के बारे में बोले तो उसका तो वैक्सीन था ही। सो व्हाट आर द वैक्सीन्स विच अ सीनियर सिटीजन्स कैन टेक एंड शुड बी टेकिंग? And which are the categories where like for a COPD patient, which are the vaccines he should take? So what are the vaccines for the senior citizens, if you can tell the viewers? Above 60 years के जो होंगे उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स लेना जरूरी है, और प्लस उनके साथ अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और COPD के केसेस को एवरी ईयर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स आते हैं, और हर साल में इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स के नए स्ट्रेन के वैक्सीन्स आते हैं। तो एक तरीके से उनको प्रिवेंशन मिलेगा कि उनको कोई तरीके का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। So आप बोल रहे हैं हर साल लेना एवरी ईयर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का हर साल स्ट्रेन चेंज होता है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लेना चाहिए। फिर जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है, COPD केसेस हैं, HIV है, जिनको हेपेटाइटिस केसेस हैं, उनको निमोकोकल वैक्सीन एक आता है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन आता है। ये किसके लिए है? ये आपका निमोकोकल वैक्सीन और मेनिंगोकोकल निमोकोकल आपका निमोनिया और रिस्क, और उसके मेनिंगोकोकल आपका मेनिंजाइटिस टाइप के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, और प्लस उनके जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उससे बचाते हैं उन लोग। और इसकी ये मोस्टली जिन लोगों का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड केसेस में हम लोग मोस्टली देते हैं। ये सीनियर सिटीजन्स भी ले सकते हैं। प्लस आजकल जो पहले तो ऐसा था कि सर्वाइकल कैंसर्स का वैक्सीन सिर्फ यंग थे, लेकिन अभी 45 ईयर्स तक भी 49-45 ईयर्स तक भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ले सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इट डज नॉट गो इनटू सीनियर सिटीजन ग्रुप। यस, बट स्टिल वी कैन टेक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन टिल 45-49 ईयर्स एज ऑफ ग्रुप. So there are a lot of vaccines which are available in the market today. Times have changed. Cervical cancer vaccines हमारे टाइम में नहीं था, but awareness is not that much. कितनी माएँ हैं, कितने बेटियां हैं जिन लोग ने cervical cancer vaccines लिया। तो ये cervical cancer and breast cancer are one of the most common dreaded disease for the women folk. तो आपको cervical cancer की जो vaccines हैं वो does it protect the entire cancer gamut, or there is a part which can be protected? मैंने why do we need to take a cervical cancer vaccine? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उस चीज़ से हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है। तो फ्रॉम द एज ऑफ 19 टिल द एज ऑफ 45 to 49 ईयर्स से तक हम लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ले सकते हैं। मोस्टली इंडिया में जो है वो 6 स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है। ये HPV वैक्सीन का जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का मेन काम है। फिर मैम ब्रेस्ट कैंसर का जो आप बताएं, ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर एवरी वुमेन अबोव 45 ईयर्स ऑफ एज को एक मेमोग्राफी करना चाहिए। और अगर बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप हैं और उनको लग रहा है उनके फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का, या उनको एक लंप टाइप का लग रहा है, एक लंप है ब्रेस्ट में, तो उसको उन लोग अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। But that is a mandatory thing. So coming to men, which are the common tests which a men should do? I think they neglect themselves. उन लोग अपना prostate checkup and these are the certain age related which from the time to time we should get it checked. So as a preventive health checkup, a men forum, which are the tests which is mandatory for them?
Men above 50 years of age group, they should always check their serum PSA level, prostate specific antigen level. फिर उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस या अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट कराएं, जिससे उनको पता चलेगा कि उनका प्रोस्टेट साइज कैसा है. तो उससे उनको पता दे कैन प्रिवेंट देयर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रोस्टेट कैंसर. तो सीरम PSA और अल्ट्रासाउंड KUB ये कराएं, प्लस नॉर्मल जो हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट, फिर रिस्क ऑफ डायबिटीज़ के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर कराएं, HbA1c के कराएं देखने के लिए कि कंफर्म करने के लिए कि डायबिटीज़ है कि नहीं, लिपिड प्रोफाइल्स कराएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए, क्योंकि मेल में देखा गया है कि फीमेल से ज़्यादा मेल को मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इस लोग अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहें. फिर अपना नेक्स्ट वो अपना लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी उन लोग करते रहें. मैडम, और एक चीज़ बहुत कॉमन है आज के सोसाइटी में, इज़ बिकॉज वी आर हैविंग लेट मैरिज फॉर women and men are also very active with their social life and their professional life. So there are a lot of late pregnancy complications, hormonal problems. Adolescents are having a lot of hormonal problems, both male and female. I wouldn't just say male and female. Identification of their sexual sex, of their own individuality, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, ये सब प्रॉब्लम्स हैं. बट ये ना अभी सोसाइटी में ये अंडर द कवर है, कोई ये बात नहीं करता है ओपनली. तो आप एज अ डॉक्टर आप ये सलाह दे सकते हैं, कैन यू टेल आवर व्यूअर्स दैट व्हेन इज अ पेरेंट, कब वो माँ बाप को या वो पेरेंट को डॉक्टर के पास लाना चाहिए, वेयर दे मे बी अ हार्मोनल डिसबैलेंस इन योर चाइल्ड, आपको कैसे पता चलता है? फीमेल्स में मोस्टली अगर आप फीमेल्स में देखा गया है कि उनका अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्के अगर लेट अटेंड हो रहा हो या उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ हों, तो ये सब जब पता चले तो वो लोग तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए एंड देन दे विल डू ऑल द नीडेड इन्वेस्टिगेशंस. मेल्स, हाँ, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट बिकॉज मेल्स आर मोस्टली इंट्रोवर्ट्स. उन लोग बताते नहीं हैं पहले चीज़ में कि क्या है. लेकिन अगर हाँ किसी भी पेरेंट को पता चला कोई भी एक्टिविटी से बच्चों के, अगर वो बहुत ही स्ट्रेस में या डिप्रेशन में, उनके पढ़ाई लिखाई में या उनको खेलने कूदने में भी अगर बच्चा अगर बहुत स्ट्रेस्ड आउट रह रहा है, कम खेल रहा है, एक जगह बैठे रह रहा है, जब उन लोग देखें कि थोड़ा डिप्रेशन में भी है, तो उस समय तुरंत कोई बच्चे को लेके आए और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन हो, उनको दिखाएं और फिर पता चलेगा कि बच्चे में कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है कि नहीं है. So to end the conversation, as a doctor, what is your take on preventive health checkup? How important it is, and हमें preventive health checkup करना चाहिए कि नहीं, और how often should we do that? अभी जैसे देखा गया है कि हमारा आफ्टर लाइक कोविड हैज़ टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो बहुत लोगों जिनको डायबिटीज़ नहीं था, कोविड के टाइम पता चला कि उनको डायबिटीज़ है, और उसके कारण देखा गया है कि इन पेशेंट्स लोगों को ज़्यादा ही रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हो रहे थे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे इनमें. तो इसलिए अभी इस कोविड के बाद मोस्टली लोगों को अवेयरनेस बढ़ गया है कि हम लोगों को हेल्थ चेकअप करना चाहिए. एक चीज़ है. तो अगर आप अबोव 60 हो तो एवरी 6 मंथ्स में आप एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन करिए, जिससे आपका शुगर प्रोफाइल कर लीजिए, एक नॉर्मल किडनी फंक्शन टेस्ट कर लीजिए, एक बेसिक आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट कर लीजिए. एवरी 6 मंथ्स में आपको पता चल जाएगा कि ठीक है कि नहीं. और आप अगर नोन केस ऑफ डायबिटीज़, नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन हो, तो एवरी ईयरली वंस यू शुड डू योर होल बॉडी हेल्थ चेकअप, जिसमें आपका इवन इको 2D इको और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो भी इंक्लूडेड हो, प्लस आपका पूरा यूरिन, स्टूल और नॉर्मल ऑल द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडेड हो. यंगस्टर्स में they can above, if they are 20 years and above and they are finding themselves in any conditions like chronic fatigue भी रह रहे हैं, they should go for a basic investigations of complete blood count and random blood sugar. और अगर आप 25 प्लस हो गए, आप वर्किंग स्टेज में आ गए हैं, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, स्लीप डिस्टर्ब रह रहा है, तो एवरी ईयरली वंस कम से कम एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराइए, CBC या रैंडम ब्लड शुगर या एक नॉर्मल ECG, क्योंकि देखा गया है कि यंगस्टर पॉपुलेशन में भी आजकल जीन जेनेटिक डिजीजेस के कारण ज़्यादा प्रिविलेज हो गया है ये सब चीज़ें. तो इसलिए अब हेल्थ चेकअप्स अब तो सारे ऑफिसेज, हॉस्पिटल, जहाँ भी एम्प्लॉयज़ हैं, एवरी एम्प्लॉयज़ को भी ईयरली है मैंडेटरी हो गया है कि हेल्थ चेकअप कराएं. जी. So coming back to the end of the program,
We have learned a lot of things today. Preventive health checkup has to be there in our lives. It has to be a part of our life. आप चाहे बुज़ुर्ग हो, आप यंगस्टर हो, आप मिडिल एज्ड हो, आप साल में एक बार तो इतना वक्त निकाल ही सकते हैं कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करें. There are certain takeaways which Dr. Gargi Singh has told us today, that diabetes is there. We have to live with it. We can control it. We can manage it. Hypertension, you have been detected with it. We can manage it. All we have to do is we have to be careful. We have to be controlling ourselves, and we have to balance. Stress is something which we don't have any alternative to. We should know how to manage. So with the Health Connect program from Kalinga Hospital Limited, we will be coming up with all these small episodes in the subsequent week with different kinds of topic which has a common question for the common people. So stay tuned with us at this podcast for the coming week. Thank you very much. For any query, please contact Kalinga Hospital Limited. We are there for you. Namaskar.